اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 210 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ حل کیا ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ مگر، ان کہ یاتیا آ جائے، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، فی میں ظلل سائے، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، واو اور قضیہ فیصلہ کر دیا جائے، الامر معاملے کا، واو اور الہ کی طرف، اللہ اللہ، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور معاملات۔ حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے، وَقُضِیَ الْأَمْرُ اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 کے اندر اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے ہر اس شخص کو جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے دلائل کو اور اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام کو مسترد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ پاک کے مخاطب کرنے کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ باز آ جائیں کفر سے، وہ باز آ جائیں منافقت سے، وہ باز آ جائیں یہودیت و عیسائیت سے، ہر دین سے کٹ کر وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو انداز اپنایا ہے، آپ دیکھیں بات سمجھانے کے لیے یہ کتنا مؤثر انداز ہے۔ اب سنیے گا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اور تشریح کو۔ اس کے اندر میں آپ کو 3 بنیادی باتیں سمجھانا چاہوں گا۔ یہ جو آیت کے الفاظ ہیں، یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس آ جائے اللہ، اگر ہم اس کو ظاہری معنی پر رکھیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کافروں کی ایک خواہش تھی یا یہودیوں کی ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے بے پردہ ہو کر، بے نقاب ہو کر، ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم مشاہدہ کریں اپنی آنکھوں کے ساتھ، تب ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہو وہ کسی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور پتہ چلے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بادشاہ ہے، اور فرشتوں کے جھرمٹ اس کے دائیں بائیں ہوں، فرشتوں کی فوجیں ہوں، فرشتوں کی قطاریں اس کے دائیں بائیں ہوں، یعنی ہم اللہ کو بھی دیکھیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھیں، تو ہم تب جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ ایک پہلی بات یہ ہے، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس آیت کو متشابہات میں سے مانتے ہیں۔ متشابہ کا معنی کیا ہے؟ متشابہ کا معنی ہے ایک ایسی آیت کہ جس کا حکم، جس کا معنی و مطلب ہم پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اس آیت کو، کیونکہ اگر ہم یہ مطلب اخذ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آئے اور تخت پہ بیٹھا ہوا ہو، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ماننا پڑے گا، کیونکہ دیکھی تو وہ چیز جا سکتی ہے جس کا کوئی جسم ہو، پارٹس آف باڈی ہوں، اعضائے جسمانی ہوں اور وہ نظر آئیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جسم مان بیٹھیں گے تو پھر اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان بھی ماننا پڑے گا،
जगह माननी पड़ेगी। जिस्म जगह लेता है, जिस्म को जगह चाहिए, जिस जगह के अंदर वो जिस्म होगा। तो अल्लाह ताला के लिए ना हम जिस्म मानते हैं ना हम मकान मानते हैं, लिहाजा हम कह देंगे कि ये आयत जो है ये मुतशाबिहात में से है, इसको मुकम्मल तौर पर हम समझने से कासिर हैं। बाज़ उलमा वो हैं जो इस दूसरी किस्म के उलमा वो इस आयत की तावील करते हैं, यानी इसका कोई मुरादी माना लेते हैं। मुरादी माना वो कैसे लेंगे? वो कहेंगे कि हम इस आयत में अल्लाह ताला को मुराद नहीं ले रहे, बल्कि अल्लाह के अजाब को मुराद ले रहे हैं, अल्लाह के फ़ैसले को मुराद ले रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का फ़ैसला आ जाए, अल्लाह का अमर आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो अजाब लेकर आ जाएं। ये इसका माना, ये दूसरी किस्म के उलमा हैं जो इसका माना करते हैं। अच्छा, अब तीसरा इसमें पॉइंट समझिएगा, तीसरी बात इसी आयत के तहत। बाज़ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम इसको ना तो मुतशाबिह मानेंगे ना ही हम इस आयत की तावील करेंगे, बल्कि इसका जो ज़ाहिरी माना है हम वही मुराद लेंगे। ज़ाहिरी माना इसलिए मुराद लेना जायज़ होगा उन उलमा के यहाँ, वो कहते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी बात तो की ही नहीं है, अल्लाह पाक कोई अपना कौल तो नहीं सुना रहा, अपना तो अल्लाह ताला इरशाद नहीं सुना रहा, अल्लाह पाक तो बात कर रहा है काफरों की। काफर तो काफर हैं, तो काफर अपनी ज़ुबानों से जो कहते हैं वो कहते रहें, काफरों की बात हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है, हमारे लिए दलील तो नहीं है, हम काफरों की बात को कब दुरुस्त मानते हैं? वो काफरों का कुफ्र है। वो कहते थे, वो सोचते थे कि अल्लाह ताला खुद हमारे सामने आए, हमारे सामने आएगा तो तब हम उसको मानेंगे। अब ये जो माना है, तीसरा माना, अगर आप इसको दुरुस्त मान लें, इस माने को आप सही समझ लें, तो आयत का मतलब मज़ीद समझने में आसानी हो जाएगी। आप देखें, उनकी ख्वाहिश और उनकी तमन्ना अगर पूरी कर दी जाती, यानी अल्लाह ताला खुद माअज़ल्लाह उनके सामने आ जाता। वैसे एक चीज़ समझ लें कि अल्लाह ताला जो है, हमारी जो ये आँख है, हमारे जिस्म की आँख, ये अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। वो अल्लाह ताला नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है। तो उसका जो नूर है वो हमारी आंखों में समा ही नहीं सकता। हमारी ये फ़ानी आंखें हैं, वो ज़ात बाकी ज़ात है, हम इन फ़ानी आंखों के साथ उस बाकी ज़ात का मुशाहदा कैसे करेंगे? जोड़ नहीं बनता ना। हम महदूद हैं, अल्लाह ताला ला महदूद है। हम अज़ली और अबदी नहीं हैं, हमारा कहीं से हमारा वजूद शुरू हुआ और कहीं पर जाकर हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हम अज़ल से नहीं हैं, हम अबद तक नहीं हैं। अल्लाह अज़ल से है, अल्लाह अबद तक है। तो हम कैसे इस जहान के अंदर रहते हुए हम कैसे अल्लाह ताला को देख सकते हैं? ये मुतालबा करना ही गलत है, ये मुतालबा करना ही गुमराही का बाइस है कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। जी, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरी निशानियों को देखो। यही तो इम्तिहान है कि मेरी निशानियों को देखकर मुझे कौन पहचानता है। जो मेरी निशानियों को देखकर मुझे पहचान जाएगा वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के अंदर अपनी निशानियां बखेर रखी हैं, फैला रखी हैं अपनी निशानियां हर तरफ। सूरज का मशरिक से तुलू होना, ज़मीन से बीज का उगना, हवाओं का चलना, आसमान से बारिश का बरसना और मौसमों का रद्दोबदल, तगय्युर व तबद्दुल, रात का दिन बनना, दिन का रात बनना, गर्मी का सर्दी में तब्दील होना, सर्दी का गर्मी में तब्दील होना, कहीं ऊंचाई का होना, कहीं पस्ती का होना, कहीं पहाड़ों का होना, कहीं मैदानी इलाकों का होना, ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत की बैयन निशानियां हैं, मुँह बोलता सबूत है। पैगंबर अल्लाह ताला की निशानियां हैं, पैगंबर के मोजज़ात अल्लाह ताला की निशानियां हैं। फिर इसी तरह से ये कुरान मजीद हमारे पास अल्लाह ताला की निशानी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरी निशानियों को देखकर मुझे पहचानो, मुझे समझो, मेरी मारिफत हासिल करो। और ये एक हदीस पाक भी है कि तुम अल्लाह में गौर ना करो, तुम अल्लाह की निशानियों में गौर करो। उसकी निशानियां हमारे खारिज में भी मौजूद हैं और हमारे बातिन में भी मौजूद हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे जिस्म से बाहर भी मौजूद हैं। इसे कहा जाता है सैर अनफुसी और सैर आफाकी। सैर अनफुसी क्या है कि हम अपने आप में गौर करें तो अल्लाह तक पहुँच जाएंगे।
اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم اپنے باہر میں، اپنے خارج میں، اس کائنات کے گرد و پیش میں ہم غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں ہم ان ساری نشانیوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم ایک ہی چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ خود ہمارے سامنے آئے، فرشتے اس کے دائیں بائیں ہوں اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر تمہیں ابھی اللہ دکھائی دے اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو ابھی اسی وقت دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسی اپنی فانی آنکھوں کے ساتھ، پھر تو فیصلہ ہو گیا نا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر فیصلہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر بھی جو اللہ کو نہ مانے گا تو اس کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ تو جائے گا جہنم میں ہی جائے گا۔ اس نے تو نشانیوں میں غور ہی نہیں کیا، اس نے سیدھا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے، تو وہ تو جائے گا جہنم میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ اس فیصلے کا وقت ابھی آنے والا ہے، قیامت جب آئے گی تو تب یہ فیصلہ ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اسی وقت آنن فانن یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین پردوں میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو، اس کے جلووں کو تم برداشت کر سکو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی ہر معاملے کا فیصلہ اللہ پاک خود فرمائے گا۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کے تین جو میں نے آپ کو اس کی تفسیریں کر کے دی ہیں، ان تینوں میں سے کسی کو آپ درست سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آیت کی بخوبی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کیجئے، بنی اولاد اسرائیل کی اولاد یعقوب، بنی اسرائیل سے آپ پوچھئے، اے پیغمبر آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کتنی آتیناہم ہم نے انہیں دی ہیں، من آیتم بینہ روشن دلیلیں، کتنی ہی روشن دلیلیں ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ ومن اور جو یبدل بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما جو جاءت ہو اس کے پاس آئی، جو اللہ کی نعمت اس کے پاس آ گئی ہے، اس کے آ جانے کے بعد جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فَإِنَّا پس یقیناً اللہ تعالیٰ شدید سخت العقاب عذاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، چونکہ جو جتنے بھی قبائل تھے دائیں بائیں آس پاس مدینہ طیبہ کے، وہ سب کے سب یہود کے پاس آتے تھے، یہود سے آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کی دلیلیں مانگتے تھے، یہود کے پاس دلائل موجود تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ذرا ان سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں، چمکتی ہوئی نشانیاں، ازہر من الشمس نشانیاں، سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن نشانیاں معجزات کی شکل میں ابھی ان کا ذکر کر چکا ہوں، انفس اپنی ذات کے اندر نشانیاں، اور آفاق یعنی کائنات کے اندر نشانیاں، بادلوں کی صورت میں نشانیاں، بارش کے برسنے کی صورت میں نشانیاں، ہواؤں کے چلنے کی صورت میں نشانیاں، سورج کے طلوع اور غروب میں نشانیاں، چاند کے طلوع اور غروب میں نشانیاں، سیاروں کے طلوع اور غروب میں نشانیاں، کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہم نے عطا فرمائی ہیں ان بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کے اوپر مثال کے طور پر ان کو فرعون سے نجات ملی، ان کے لیے طور پہاڑ کو ہوا کے اندر معلق کر دیا گیا، اسی طرح سے ان کو دریا کے اندر ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، خشک راستے بنا دیے گئے، اسی طرح سے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کتنی ہی روشن نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ شخص جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، اللہ کی نعمت آ چکی ہے، تو جو اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے،
अल्लाह ताला उसको बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ बदलने से मुराद क्या है? नेमत से मुराद क्या है? हिदायत। नेमत से मुराद क्या है? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिल जाना, कुरान का आ जाना, और तौरात के अंदर जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान हुई, उस शान को छुपा देना, उस शान को बदल डालना, उन अलामात को बदल डालना। तो जो बदल डाले अल्लाह ताला की इस नेमत को, कि जो तौरात के अंदर हुजूर की मिदहत बयान की गई, हुजूर की नात बयान की गई, तो जो बदल डाले और लोगों को हकीकत से आगाह ना करे बल्कि हकीकत को छुपा दे, तो अल्लाह ताला उसको बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। अब सुनिएगा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 212। ज़ुय्यिना आरास्ता कर दी गई है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो काफरू कुफ्र किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयातुद दुनिया दुनियावी ज़िंदगी, व यस्खरूना और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनु उन लोगों का जो ईमान लाए, वल्लज़ीना तक़ौ और वो लोग जो परहेज़गार हैं, फ़ौक़हुम उनके ऊपर होंगे, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। उनके ऊपर से मुराद है काफरों के ऊपर होंगे। जो मुत्तकी लोग हैं, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, वो इन काफरों के ऊपर होंगे, यानी इनकी शान बुलंद होगी। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, वल्लाहु और अल्लाह यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ अता करता है, मन जिसे यशाउ चाहता है, बिगैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया कि काफरों के लिए दुनियावी ज़िंदगी आरास्ता कर दी गई है, सजा दी गई है। इनके लिए दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्शन रख दी गई है, चमक रख दी गई है। इनके दिल खिंचे चले जाते हैं दुनियावी ज़िंदगी की तरफ, माइल हो जाते हैं दुनियावी ज़िंदगी की तरफ। अल्लाह ताला ने काफरों के लिए जो दुनिया आरास्ता कर दी है, ये बतौर सज़ा आरास्ता कर दी है कि अब इनको दुनियावी ज़िंदगी ही भली लगती है, इनकी आंखों में दुनियावी ज़िंदगी की ही चमक है। ये दुनिया के लिए ही मरते हैं, ये दुनियावी ज़िंदगी के लिए ही जीते हैं, ये दुनियावी ज़िंदगी के लिए ही स्ट्रगल करते हैं, दुनियावी ज़िंदगी के लिए ही ये कोशां रहते हैं, मसरूफ़ अमल रहते हैं। एक दुनिया की ज़िंदगी को आरास्ता करना चाहते हैं। आखरत से इनको कोई गरज ही नहीं है, आखरत से इनको कोई सरोकार ही नहीं है। असल ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी है। दुनिया के अंदर रहते हुए आखरत की ज़िंदगी को आरास्ता करना चाहिए, लेकिन ये आखरत को तो मानते ही नहीं हैं। ये तो मानते हैं सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को, और उसी को आरास्ता करने में मगन हैं। और वो लोग जो ईमान लाए हैं, अहले ईमान का ये मजाक उड़ाते हैं। अहले ईमान की नज़रों में दुनिया की कोई वक़्त नहीं होती, दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं होता। वो दुनिया को किसी खातर में नहीं लाते, वो दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। दुनिया के लिए नहीं मरते, वो आखिरत के लिए मरते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन और इस जैसे दीगर अकाबिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये सारे वो सहाबा इकराम थे जिनकी नज़रों में दुनिया की कोई वैल्यू, दुनिया की कोई वक़्त नहीं थी। वो दुनिया जोड़ते नहीं थे, वो दुनिया समेटते नहीं थे, वो दुनिया बनाते नहीं थे, वो दुनिया संवारते और सजाते नहीं थे, बल्कि वो आखिरत को बनाने में मसरूफ़ अमल रहते थे। तो कुफ़ार जो थे वो इनका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे मुसलमान हैं, इनको अच्छे खानों से कोई गरज नहीं, अच्छे घरों से, अच्छी रिहाइशों से कोई गरज नहीं, ये हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, उतना कमाते हैं जिससे इनकी गुज़र बसर हो जाए, ज़िंदगी सादगी से बसर करते हैं, ज़िंदगी कनाअत से बसर करते हैं, जो मिल जाए उसी के ऊपर शाकिर रहते हैं। कभी इनके दिलों में दुनिया के लिए कोई हसरत नहीं होती, दुनिया का कोई लालच नहीं होता, दुनिया को ये जोड़ते नहीं हैं, दुनिया को अपने पास नहीं आने देते, दुनिया को ये पसंद नहीं करते। तो ये जो कुफ़ार हैं, ये इन अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। आज भी कुफार जो हैं वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं, वावेला करते हैं और इनको हकीर जानते हैं। हकीर ये भी कोई लोग हैं, मुसलमान भी कोई लोग हैं। नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, सच बोला, हराम नहीं कमाया और हलाल से जितना जो कुछ मिल गया उसे कमा लिया बस।
तो ये अपने महल नहीं बनाते, आलीशान कोठियाँ नहीं बनाते, आलीशान बंगलों से इनको कोई गरज नहीं है, सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये भी कोई ज़िंदगी है भला? ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये काफरों की सोच थी। काफिर कहते थे कि ये मुसलमानों की क्या ज़िंदगी है, ऐसे ही मुसलमान जी रहे हैं, बस मुश्किलात से गुजर बसर करते हैं, भला ये भी कोई ज़िंदगी है? अल्लाह पाक फरमाता है जब दिन क़यामत का आएगा उस दिन इन काफिरों को मुसलमानों की शान का अंदाज़ा होगा कि हम तो गलत जीते रहे हैं, हमारा ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ तौर तरीका ही गलत था, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, ये सारा कुछ गलत था। ये तब इन्हें समझ आएगी जब दिन क़यामत का आएगा, क्योंकि वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अहले ईमान बुलंदो बाला शान पर फाइज होंगे, आली शान रुतबों पर फाइज होंगे। तो इनकी जो शान है आज वाज़े नहीं होगी। आज तुम जानो इन्हें, हकीर ही जानो। आज तुम इन्हें कोई मकाम ना दो, कोई मर्तबा ना दो, कोई स्टेटस ना दो। ये तुम्हारे मुआशरे के अंदर ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये गिरे हुए लोग हैं, तुम्हारी नज़रों से गिरे हुए हैं, ये बड़े हकीर लोग हैं, तुम इनसे नफ़रत करते हो। लेकिन जब दिन क़यामत का आएगा तो इनकी असल जो शान है वो पूरी तरह खुलकर तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी तो उनकी थी जो अहले ईमान थे, जीते तो अहले ईमान थे, क्योंकि वो ज़िंदगी जी कर आखरत को बनाते रहे हैं, वो दुनिया को नहीं बनाते रहे, वो आखरत को बनाते रहे हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। और जो तुम आज इस रिज़्क़ के ऊपर इतरा रहे हो, फ़ख्र कर रहे हो, डींगे मारते हो और ऐसे अपने गिरबान के अंदर हाथ डालकर तो अपनी शान को बयान करते हो कि देखो हम कितनी शान व शौकत के मालिक हैं, हमारे पास दौलत के अंबार हैं, कोठियाँ हमारे पास हैं, बंगले हमारे पास हैं, गाड़ियाँ हमारे पास है, तरक्की हमारे पास है, खुशहाली हमारे पास है, रोज़गार हमारे पास है, चमक दमक, ज़िंदगी की रानाइयाँ, रौनकें, ज़िंदगी की जलवा समानियाँ और ज़िंदगी के सारे रंग और ज़िंदगी की सारी बहारें ये तो हमारे पास हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ये रिज़्क़ मैं देता हूँ, जिसे चाहूँ रिज़्क़ ज़्यादा दूँ, जिसे चाहूँ रिज़्क़ कम दूँ। ये अल्लाह पाक फरमाता है ये हमारे कब्ज़े में है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। रिज़्क़ की तकसीम हमने खुद अपने दस्ते कुदरत में रखी हुई है। अच्छा, यहाँ एक आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो मुसलमान होते हैं वो मुश्किलात में रहते हैं। आप अगर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हमें गुर्बत ज़्यादा नज़र आएगी, खुशहाली काफिरों के पास ज़्यादा नज़र आएगी। इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन असल में जब किसी मोमिन को तकलीफ़ में मुब्तला करता है तो अल्लाह ताला चाहता है कि ये इस पर सब्र करे। जब सब्र करेगा तो इसका अजर अल्लाह के यहाँ बढ़ जाएगा। मोमिन को अल्लाह ताला इम्तिहानात में डालता है, तकलीफ़ों में, सख्तियों में, परेशानियों में, गमों में मुब्तला करता है। क्यों करता है? ताकि इसके ऊपर जो गम आएंगे, जो दुख आएंगे, इसके ऊपर वो सब्र करेगा और सब्र के ज़रिए इसका दर्जा आखिरत में ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि काफिर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया है, बस उसका आखिरत में है ही कुछ नहीं। काफिर के लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है, जहन्नम है, सीधी सीधी जहन्नम है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि इनको अगर ये कोई अच्छा काम करते भी हैं, हम उसको नेकी तो नहीं कह सकते, काफिर अगर कोई अच्छा काम करता भी है, खैर का काम, कोई भलाई का काम, मसलन उसने कोई ट्रस्ट बना दी है, वेलफेयर का कोई इदारा बना दिया है, कोई समाजी खिदमत का इदारा बना दिया है, गुरबा, मसाकीन, अपाहज लोग, माजूर लोगों के लिए कोई उसने ट्रस्ट कायम कर दिया है, तो अल्लाह ताला उसे उसका जो सिला है वो दुनिया के अंदर ही दे देगा। यानी काफिर जो कुछ करेगा उसका सिला उसे दुनिया के अंदर ही मिल जाएगा। जो अच्छे अमाल हैं उसका सिला उसे दुनिया के अंदर देकर अल्लाह ताला उसे फारिग कर देगा। लेकिन जो मोमिन है अल्लाह ताला उसका सिला आखिरत के लिए संभाल कर रखता है, क्योंकि मोमिन के जो असल इनामात हैं वो तो आखिरत से शुरू होंगे। तो इस जो यर्ज़ुक़ु है, रिज़्क़ अता करता है, इस रिज़्क़ का बड़ा वसी माना है। इस रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसे नहीं हैं, रिज़्क़ का माना ही बड़ा वसी है। इंसान के पास जो जो कुछ है आप उसे रिज़्क़ कह सकते हैं। मसलन इंसान के पास माँ बाप हैं तो माँ बाप भी एक रिज़्क़ हैं।
انسان کے پاس بہن بھائی ہیں تو وہ بھی اس کا رزق ہے، انسان کے پاس خاندان ہے، اچھے دوست ہیں، اچھی فیملی ہے، اچھے دوست ہیں، یہ بھی اس کا رزق ہے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، قوت شعور ہے، نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کے لیے اس کے پاس ذہنی توانائیاں موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، یہ بھی رزق ہیں۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چھونے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، کھانے کی طاقت ہے، دانت ہیں، اور انسان کا پورا جسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنے احکام کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے اور اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 212 تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔